So the new chapter for today, that is trigonometry. For standard mathematics, it is of 4 marks, 1 marks into 2 question plus 2 marks into 1 question. And for basic mathematics, it is of 5 marks that comprises 2 questions, 1 of 2 marks and 1 of 3 marks. Just comment in chat box when you complete writing this, then we will move to next slide. Written everyone? All of you written? Okay, so moving to next slide. Let's start the introduction of trigonometry. What is trigonometry? Okay, क्या होता है ये trigonometry? क्यों इसका नाम trigonometry है? So the word trigonometry is derived from the Greek word tri, means 3, gonus means side, and metron means measure. Means to measure 3 sides of a triangle, the whole system is known as trigonometry. Okay, and how we measure? We add the sides, we subtract the sides, we multiply the sides, we divide the sides. But in trigonometry, we generally divide the sides. Okay, we do perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, perpendicular upon base, sine theta, cos theta, tan theta, all these things. So all these things are division of sides of a triangle. So we are doing the measurement. That measurement is in terms of division of the 3 sides of a triangle and known as all trigonometry. So in fact, trigonometry is the study of relationship of sides and angles of a triangle. We take the angles also, sine 30 degree, cos 45 degree, okay, sine 60 degree, all these things. So we will see about all this. So done this, can we move to next? So let's see first. We know the basic conditions. Sine theta equals to perpendicular upon hypotenuse. 3 things we are having: sine theta, cos theta, tan theta. Sine theta is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is base upon hypotenuse. Tan theta is sine theta upon cos theta. When we divide these 2 things, we get perpendicular upon base. So these are the 3 relations. From these 3 relations, we are having more 3 relations, and that are termed, as you can see on screen, reciprocal relation between trigonometric ratios. Why ratios? Because all these values are in ratio form. Okay. So now the reciprocal of sine theta is cosec theta. Means there we will have the reciprocal value of this right side also, means hypotenuse upon perpendicular. The reciprocal of cos theta is sec theta. Okay, and we are having the values there as hypotenuse upon base. The reciprocal of tan theta is cot theta. Then we can write the value as base upon perpendicular. So write it down in your copy, it will be better. And just comment in chat section that you have written, so that we should move to next slide.
Done? Can we move ahead? All of you please comment. Only one Khushi is commenting. I want all of you to participate in the class. Be active in the class. Let's see the next. The values of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of triangle if angle remains the same. अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो. Suppose this is my 30 degree. Okay, this is my 30 degree. ये लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ 7 सेंटीमीटर. अब इस 5 सेंटीमीटर को अगर मैं आगे और बढ़ा दूं, इस 7 सेंटीमीटर को मैं आगे और बढ़ा दूं, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं इस लाइन को खींचते ले जाऊं, इस लाइन को खींचते ले जाऊं, एंगल 30 डिग्री ही रहेगा. So the values of trigonometric ratios of an angle do not vary with length of sides of triangle. Okay. Second point, since hypotenuse is the longest side in right angle triangle, the value of sin A or cos A is always less than 1 or in particular equal to 1. इस कंडीशन के लिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है. जिसमें एक हाइपोटेन्यूस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है. वो कौन डिसाइड करता है? एंगल डिसाइड करता है. अगर इस एंगल को मैं यहां रखूं तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा. अगर एंगल यहां है तो परपेंडिकुलर ये हो. परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री बनाता है वो बेस. एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ठीक. अगर एंगल इधर होगा तो परपेंडिकुलर उसके सामने होगा. अगर एंगल इधर है तो परपेंडिकुलर उसके सामने होगा. और परपेंडिकुलर के साथ जो 90 डिग्री बनाता है उसको हम बेस बोलते हैं. क्लियर? सो हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है. तो साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 से ही होती है. क्योंकि अभी हमने देखा साइन और कॉस से 10 बना. टोटल 6 चीजें होती हैं. ठीक ना? तो उन 6 चीजों में बेसिक चीज क्या होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा. साइन थीटा को उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा बन जाता है. 2 चीज बन गया. कॉस थीटा को उल्टा करेंगे तो सेक थीटा बन जाता है. 4 चीज हो गया. साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा बनेगा. और उस टेन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट थीटा बनेगा. मतलब साइन और कॉस ये दो ही मेन है. तो साइन और कॉस की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहती है. 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक. ये कब की बात हो रही है? 90 तक की बात हो रही है. 90 से आगे गए तो फिर वो देखा जाएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन. 0 से 90 डिग्री के बीच में वैल्यू 0 से 1 तक ही होती है. ठीक ना? 0 से कम नहीं होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा. क्लियर? डन दिस. आगे बढ़े. लेट्स सी द टेबल. कितने लोगों को ये टेबल याद है? कितने लोगों को ये टेबल याद है? कमेंट सेक्शन में लिखो.
यस आस्था? Yes, sir. रेज हैंड किया। रेज हैंड की होना, कुछ डाउट है? नैतिक? सर डाउट याद है, उसके लिए राइट हैंड कर दिया था। अच्छा ठीक। अब देखो, अब हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे पूरा टेबल 5 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक ना? हम एक ट्रिक सीखेंगे जिससे पूरा टेबल 5 मिनट में याद हो जाएगा। अपना राइट हैंड लेना, ठीक ना, उसको कॉपी पे ऐसे रखना और उसका आउटलाइन बनाना। अच्छा नहीं बना है, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट से मतलब है। अब एग्जाम में अगर हम देख रहे हैं, एग्जाम में जब हम देखेंगे तो हम अपना लेफ्ट हैंड देखेंगे। ठीक ना? एग्जाम में जब हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड देखेंगे। अगर बनाना है इसको तो राइट हैंड रख के उसके चारों तरफ आउटलाइन। उसके बाद एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। Value is equals to root n upon 2. एक और इंपॉर्टेंट चीज, साइन थीटा इधर, कॉस थीटा राइट में। साइन थीटा लेफ्ट में, कॉस थीटा राइट में। अब ध्यान से देखो, ये दिख रहा है, बोर्ड इज ब्लर बट ये दिख रहा है सिंपल। यस सर। अपना जो है ना, अपना राइट जो लेफ्ट हैंड उसको सामने रखो। अपना लेफ्ट हैंड जो है उसको सामने रखो, अपने फेस के सामने। अब उसके बाद ये 5 उंगलियां जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। क्लियर? इतना कर लिए? ओके। अब इसके बाद देखो, हमको साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए। अगर ये 2 की वैल्यू मिल गई तो सारी चीजों की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा। कोसेक थीटा और सेक थीटा दोनों का डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा और कॉट थीटा मिल जाएगा रेसिप्रोकल करके। तो 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। अब अपने को साइन थीटा चाहिए। सपोज करो साइन अपने को 30 डिग्री चाहिए, तो पहले तो हम 30 डिग्री पे के फिंगर को पकड़ लेंगे। ये है 30 डिग्री का फिंगर, इसको हमने पकड़ लिया। अब साइन थीटा के लिए अपने को लेफ्ट देखना है। तो अगर मैं इसके लेफ्ट में देखूं तो सिर्फ मेरा ये थंब है, एक उंगली है। ठीक ना? तो यहां जो मैंने n लिखा है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ फिंगर्स। n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिंगर्स। ठीक, तो मैंने 30 डिग्री पे होल्ड किया है। अब 30 डिग्री पे मैं लेफ्ट देख रहा हूं तो मेरे पास एक फिंगर है अपना लेफ्ट। तो उसमें देखो लेफ्ट हैंड सामने रखो, उस पर 30 डिग्री पे जाओ और 30 डिग्री पे जाने के बाद लेफ्ट साइड देखो। तो लेफ्ट साइड में तुमको सिर्फ थंब दिखेगा। ठीक ना? तो हमको साइन थीटा देखने के लिए, साइन की वैल्यू के लिए कहां देखना है? लेफ्ट साइड देखना है। तो लेफ्ट साइड जब हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही फिंगर था। ठीक, ये वाला। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया? एन पे हम क्या रखेंगे? √1। हमको पता है √1 की वैल्यू 1 होती है, तो वैल्यू कितना आ गया? 1/2।
तो जब हमने यहाँ रखा तो हमारी वैल्यू क्या आई 1/2। उसी समय अगर हम कॉस का देखना चाहते हैं, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस के लिए हमको किधर देखना है, राइट में। तो राइट में कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां हैं। ये काम आप अपने लेफ्ट हैंड पे करोगे, ठीक ना। कितनी उंगलियां हैं, 3 उंगलियां। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 3। तो देखो स्क्रीन पे cos 30 की वैल्यू √3/2 है ना। cos 30, सब अपना लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड से पता चल जाएगा, ठीक। तो 30 डिग्री हमने निकाल लिया। सपोज करो हमको 45 निकालना है, तो हम 45 वाले फिंगर को पकड़ेंगे, इस फिंगर को काउंट नहीं करेंगे, इसको छोड़ के बाकी सब काउंट होंगे, ठीक। तो जब हम 45 पे रखे हैं, 45 पे होल्ड किए हैं, उस समय लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड अपने को 2 फिंगर्स मिल रहे हैं, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 2 फिंगर्स मिल रहे हैं। तो जब हम 45 पे रखेंगे उस समय इधर भी 2 फिंगर्स, इधर भी 2 फिंगर्स, मतलब sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम आएगी। और आप स्क्रीन पे देख लो, दोनों की वैल्यू सेम है। उस समय फिर हम यहाँ √2 रखेंगे, √2/2। अब हमको पता है नीचे का जो 2 है वो बना है √2 इंटू √2 से, ठीक। ये हमको पता है ना कि 2 रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाते हैं। तो नीचे के 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। वो ऊपर वाले √2 को कैंसिल करेगा, एक √2 को कैंसिल करेगा। इसको मैं करके दिखा देता हूं। n value is equals to √n/2। जब हमने 45 पे रखा, ठीक ना, जब हमने 45 पे रखा तो इधर भी 2 फिंगर्स थे, इधर भी 2 फिंगर्स थे, ठीक। उस समय हमने ध्यान दिया कि हमारे फिंगर्स तो 2 आ रहे हैं, तो हम √2 रखेंगे ऊपर में और नीचे में 2 लिखेंगे। अब हमको पता है कि नीचे का जो 2 है वो 2 √2 के मल्टीप्लीकेशन से बना है, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगा 1/√2। ये बेसिक क्लास 8 में हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट में कि कोई भी वैल्यू जो होती है वो सिमिलर रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर बनती है, ठीक। सेम अब आते हैं 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे आने के बाद अगर हम लेफ्ट साइड में देखें, अपने लेफ्ट हैंड के लेफ्ट साइड में देखें, 60 डिग्री पे आने के बाद तो हमको 3 फिंगर्स दिखेंगे, ठीक। तो उस समय हमारी ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी √3/2। किसके लिए, साइन के लिए। और उसी 60 पे जब हम राइट में देखेंगे तो एक ही फिंगर है, ठीक ना। आप देखो एक ही फिंगर है राइट में। उस समय cos 60 की वैल्यू कितना हो जाए, राइट साइड हम किसके लिए देखते हैं, cos के लिए देखते हैं। तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो हमको क्या क्या चीज ध्यान रखना है, sin थीटा लेफ्ट साइड, cos थीटा राइट साइड। और ये पूरा प्रोसेस किस पे चलेगा, लेफ्ट हैंड पे चलेगा, ठीक। ये पूरा प्रोसेस किस पे चलेगा, लेफ्ट हैंड पे। डन दिस। तो ऐसे ही हम 0, 30, 45, 60, 90 का निकाल लेंगे, साइन और कॉस का मिल जाएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा। Next, trigonometry identity. When an equation
involving trigonometric ratio of an angle A:2 for all values of A, then equation is called trigonometric identity. यस, साइन और कॉस की वैल्यू निकल गई तो बस रेसिप्रोकल करते जाओ, डिवाइड करके tan निकाल लेना, रेसिप्रोकल करते जाओ, बाकी की 3 वैल्यूज आ जाएंगी. सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? आइडेंटिकल मतलब एक जैसा. अगर एक हमने निकाला साइन ए, तो उसी ए एंगल पे हमको कॉस ए भी निकालना है, tan ए भी निकालना है, sec ए, cos ए के, cot ए, ये सारी चीजें हमको निकालना है. समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मींस एक ही एंगल पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है. अगर हम ए एंगल पे काम कर रहे हैं तो ए एंगल पे पूरे 6 रेशियो हम निकालेंगे, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सेक ए. नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक पर्टिकुलर एंगल स्क्वायर के फॉर्म में. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. 3 फॉर्मूले होते हैं, इस पे भी ध्यान देना. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equals to 1. Sec square theta minus tan square theta is equals to 1. Cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. इन तीनों में बस साइन और cos के पास प्लस का साइन लगा है, बाकी दोनों माइनस है. अगर इसको फॉर्मूले को अच्छे से याद करते हैं तो इधर ध्यान दो, एस एस एस, क्योंकि यहां भी को था, यहां भी को था, सीओ को सीओ को, तो कॉसेक और कॉट में को में किसको पहले लें? एस वाले को पहले लें, क्योंकि प्लस माइनस यहां माइनस वाली चीज है ना, तो 1 - 2 और 2 - 1 में डिफरेंस होता है, प्लस में डिफरेंस नहीं होता. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो सेम होगा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे तो अलग हो जाएगा. सो एस 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 रूल, एस 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 रूल. ये 3 ही आइडेंटिटी है, इसी को आगे पीछे शिफ्ट करके और 6 बना दिया जाता है, 8 बना दिया जाता है. इसमें एक बार इसको आगे करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. फिर एक बार कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बन गया, फिर इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बन गया, फिर इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूला बन गया, 9 फॉर्मूले होंगे. तो उतना हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको सिर्फ ये 3 याद करना है, और ये 3 ऐसा याद हो कि वो सब आराम से बन जाए. तो इसमें सबसे बेसिक है एस 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 रूल. एस वाले को हम पहले लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एस फॉर साइन पहले आएगा, कॉसेक और कॉट इसमें भी एस वाला पहले आएगा, सेक और टेन एस वाला पहले आएगा. क्लियर? हो गया, ये लिख लिए. जितने लोग हैं क्लास में सब रिप्लाई करें. होगा क्विज, आगे क्विज है, इसी में बना हुआ है मेंटी में ही. पहले हम थोड़ा बेसिक तो पढ़ लें, उसके बाद आगे. और सब एक्टिव नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा? अब तो सेक्शंस भी अलग हो गई है, आप लोग एक्टिव रहो. इतना मेहनत करके मैं स्लाइड बना रहा हूँ, मेरे को भी टाइम लगता है. नेक्स्ट दूसरा वाला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, जो अभी हमने लिखा था, इसके बारे में.
तो हर फॉर्मूला अपने आप में 3 फॉर्मूला बन रहा है, तो टोटल 9 फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन हमको बेसिक ये 3 पे फोकस करना है, एसएसएस पे, क्योंकि ये याद रहेगा तो बाकी के जो 6 है ना वो अपने आप बन जाएंगे। Write fast. फॉर्मूला नंबर दिया हुआ है, फॉर्मूला नंबर डालते रहना। यहां आप देख सकते हो, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, ठीक ना, ये फॉर्मूला नंबर 2। हमारा बेसिक फॉर्मूला ये है, ठीक ना, ये उसके फॉर्म्स हैं, ये जो है इसके फॉर्म्स हैं। और ऐसे ही हम लिखेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक। Okay, let's move to next, last and third of SSS. This is the third format. This is third with equivalent forms. Okay. So let's see the question. That is not sine square theta, sine 2 theta, that is sine square theta. Okay. If 7 sine square theta plus 3 cos square theta equals to 4, prove that tan theta equals to 1 by root 3. ठीक, तो अभी हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है 7 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अगर 7 है तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 7 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे होता है ना कि 4 चेयर प्लस 3 चेयर, तो अगर हम बात सिर्फ चेयर की कर रहे हैं, अगर हम बात सिर्फ चेयर की कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। वैसे ही उस 7 जो साइन स्क्वायर थीटा था उसको मैं लिखा 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। यस, यू हैव टू राइट द आंसर। और फिर बाद में 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब यहां अगर मैं देखूं 3 साइन स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा, 3
साइन स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये 4 साइन स्क्वायर थीटा अलग से है। तो इन दोनों में से 3 में कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी हमने देखा है इसकी वैल्यू 1 होती है। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। क्लियर? इसके बाद 3 1 जा 3, इस 3 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये जो +3 था इधर जाके -3 हो जाएगा। 4 - 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 - 3 मतलब 1। 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद हम इस 4 को भी इधर शिफ्ट करेंगे, तो लेट्स सी सॉल्यूशन। ये देखो, इस 4 को इधर शिफ्ट किए तो 1/4 हो गया। तो वो जो 1/4 हुआ, यहां से अगला स्टेप यहां से है, ये जो 1/4 होगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। ठीक ना, वो जो 4 होगा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी। तो उस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे। जैसे ही दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा और 1/4 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक, और डायरेक्ट वहां से हम एंगल निकाल सकते हैं। हमको पता है कि साइन की कौन सी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2। तो अगर साइन 30 1/2 होता है तो यहां से थीटा की वैल्यू, देन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो जैसे ही हमको मिल गया थीटा, तो हम क्या करेंगे, 10 में रख देंगे, और 10 थीटा की जगह 10 30 जैसे ही रखेंगे उसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। tan 30 जो होता है वो 1/3 होता है। ठीक, इसने बनाया है पाइथागोरस थ्योरम से, हम एकदम सिंपल बनाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका पीडीएफ